Hi, hello to everyone. Myself Rahul Giri, and I come from Raveli district of Uttar Pradesh. Uh, I have completed my masters in mathematics from University of Allahabad. Currently, I am teaching in Motion Education Private Limited in Bareilly Center, and I am taking their regular classes of 11th, 12th, and 13th JEE Mathematics of mains and advanced batches. Today, we will discuss about a particular topic of class 12th NCERT book that is called inverse trigonometric functions. Okay, and in between the discussion of this chapter we will add some subtopics. Okay, so the name of the chapter is inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions, and the subtopics are as follows. First one is functions, and the second one is types of functions, and the third one is bijective function. Bijective functions, and the fourth one is ITF itself. ITF, that is called inverse trigonometric functions. So as we can see that the name of the chapter contains three words: inverse, trigonometric, and functions. So we will firstly discuss about the functions. What are the functions? In class 11th NCERT book, we firstly encounter with the first chapter, that is called relations and functions. So from that chapter we will inherit the example of functions. Okay, so functions are the special type of relation with some conditions. Okay, फंक्शंस आर द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस विद सम कंडीशंस. अब हमारा फोकस ये है कि वो कंडीशंस क्या है जो रिलेशन को एक फंक्शन बनाती हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे. तो एक्चुअली फंक्शन को हमें इतना पता है कि फंक्शन जो होता है वो एक सेट से दूसरे सेट में कुछ कंडीशंस के साथ में एक बनता है. वो निकल के आता है कि हाँ रिलेशन है, तो वो दो सेट के बीच में होगा. एक्चुअली जो रिलेशन होता है वो दो नॉन एम्पटी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. एंड इस आर पे अगर हम कुछ कंडीशंस इंप्लीमेंट करेंगे तो वो फंक्शन बनता है. तो उन्हीं कंडीशंस को हम यहाँ पे जस्ट ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारा टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इन सब चीज़ों को थोड़ा शॉर्टली ख़त्म करना होगा. तो एफ इज़ अ फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं कि एफ एक फंक्शन, ये फंक्शन का नोटेशन है. एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ए इज़ द फर्स्ट सेट इज called domain, and the second set is called co-domain. Okay, and in Venn diagram function को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि like that A is the first set and B is the सेकेंड सेट. तो यहाँ से यहाँ तक में एक फंक्शन, एक हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया है जो कुछ कंडीशन के साथ में फंक्शन बन करके हमारे सामने आएगा. तो फंक्शन एक ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक दो सेट के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है. तो हम ये मान लेते हैं कि ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक A1 है, A2 है एंड AN, एंड बी में B1 B2 एंड अप टू सो ऑन BN आर द एलिमेंट्स ऑफ B. सो कंडीशन हमारी ये है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर शुड बी एन यूनिक इमेज of that element of the each element of domain. There should be an unique image in codomain. Like अगर A1 का मैपिंग B1 से हुआ है तो अब A1 का मैपिंग किसी और एलिमेंट से नहीं होगा. ये इसका मीनिंग है कि B1 is the image of A1 and B1 is unique for A1. Got it? A2 may be mapped to B1 because B1 is the image of A2 and B1 is unique for A2 and B1 is unique for A1 also. But A1 will not be mapped to any other element of B now. So this is the case of function. Means all elements of A will be mapped to the set B, but more than one element of A will not have the more than one image in set B. This is the condition of function. So हम यहाँ पे just
फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन जानने के बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे और उसमें जो कुछ टाइप्स हैं, वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो ये तीन कंडीशन फंक्शन की हैं जो हमारे इन्वर्स आईटीएफ के लिए रिक्वायर्ड है। तो उन्हीं को डिस्कस करके हम आईटीएफ तक आएंगे। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आते हैं हम। फर्स्ट वन इज वन फंक्शन। फर्स्ट वन इज वन फंक्शन। अब ये वन फंक्शन है तो इसका एक जो टर्म ही है वो खुद ही बोल रहा है कि 1 to 1, मतलब एक की इमेज एक ही होगी। मतलब एक एलिमेंट डोमेन से आएगा, दूसरा एलिमेंट को डोमेन से रहेगा, तो एक का इमेज एक ही बनेगा। ये टर्म इटसेल्फ ही डिफाइन कर रहा है कि 1 to 1 मैप होगा। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई सेट है और यहाँ पे कोई सेट बी है और ए में कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी एंड देर आर द एलिमेंट्स ऑफ बी लाइक 1, 2 and 3. If A is mapped to 1, then A will not be mapped to any other element of B because A is unique to 1 and 1 is unique to A. So B, अगर B को मैंने 3 पे पहुंचा दिया, B का मैपिंग हमने 3 पे किया, तो C का मैपिंग 2 पे होगा। तो यहाँ पे ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज एक ही है, सिंगल है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ वन फंक्शन। अब यहाँ पे हो भी दूसरी कंडीशन हमारी है जब मैं बात करता हूँ ऑन टू फंक्शन की। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ओके, तो ऑन टू फंक्शन को समझने से पहले थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ। होता ये कि जैसे ए से बी में कोई एक फंक्शन डिफाइन है, तो जितने एलिमेंट मैप होकर के यहाँ पे बी में क्रिएट होते हैं वो सभी जो है रेंज बनाते हैं एफ़ का। मीन्स लाइक अगर मैं एफ़ के रेंज की बात करूँ तो ए का मैपिंग 1 इज़ द इमेज ऑफ ए एंड 2 इज़ द इमेज ऑफ सी, 3 इज़ द इमेज ऑफ बी। तो 1, 2, 3 जो ए रेंज ऑफ एफ आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ विल बी 1, 2 and 3. सो दिस इज़ द रेंज ऑफ एफ। ऑन टू फंक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि अगर मैंने फंक्शन कोई डिफाइन किया, अगर मेरा कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो जो एफ की रेंज आए वो कंप्लीट बी सेट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे है कि बी हमने सेट लिया हुआ है 1, 2, 3, तो ये इसका जो रेंज है पूरा 1, 2, 3 ही है, बिकॉज यहाँ पे सारे एलिमेंट जो को डोमेन के हैं वो भी उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ये इसका रेंज हो जाता है। तो अगर रेंज ही को डोमेन ही रेंज हो जाए तो वो कंडीशन हो जाती है ऑन टू फंक्शन की। तो ये कंडीशन हमारी रिक्वायरमेंट है आईटीएफ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो को डोमेन होगा, दिस इज द मेन कंडीशन, को डोमेन विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। Okay, now the third type of function is many to one. We'll erase it here. Third type of function is many to one. Third one is many to one, या आप many one कह सकते हैं, many one function। मेनी वन फंक्शन में क्या होता है कि एज अ नेम जो कह रहा है कि मेनी वन है, मतलब मेनी से वन की तरफ जा रहा है। मतलब अगर डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट का इमेज सेम हो रहा है, मींस अगर यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 1, 2 या 3 और 4 एलिमेंट हैं, देयर मे बी मोर एलिमेंट्स, लेस एलिमेंट्स एंड इक्वल एलिमेंट्स ऑल्सो। तो ए का मैपिंग अगर हमने एक पे किया है तो बी भी एक पे जा सकता है, सी भी एक पे जा सकता है। तो दिस इज यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट है जिनकी इमेज सिंगल सिंगल एलिमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये फ्रॉम मेनी टू वन जा रहे हैं, तो ये आपका मेनी वन में आ जाता है। इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो मेनी वन फंक्शंस होते हैं। तो उनको बाइजेक्टिव, उनका इनवर्स डिफाइन करने के लिए मुझे एक टर्म की रिक्वायरमेंट होती है बाइजेक्टिव फंक्शन की। तो उसको डिफाइन करने के लिए सारे एलिमेंट्री चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो होता ये है कि हमने यहाँ पे जान लिया कि वन फंक्शन क्या होता है एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है एंड मेनी वन फंक्शन क्या होता है। अब हमारा जो थर्ड वन है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, अच्छा एक बात मैं भूल गया कि जो वन फंक्शन होता है, वन फंक्शन का अनदर नेम ये भी है, वन फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव भी। वन फंक्शन का अनदर नेम है जिसे हम कहते हैं इंजेक्टिव
function, and onto function is called surjective. This is just the another name of these functions. ओके, तो अगर कोई फंक्शन आपका बाइजेक्टिव भी हो जाए, सॉरी 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, तो उसे हम कह देते हैं कि वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो होता ये कि अगर मैं यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करूँगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन will be equal to injective plus surjective, means 1 plus onto. If both the condition are followed, then the function is bijective function. अब इसका मीनिंग क्या है? दिस इज द मेन क्रक्स पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. तो होता ये कि अगर मैं बाइजेक्टिव फंक्शन को एग्जांपल लूँ, तो अगर मुझे वो 1 भी होना चाहिए और वो आपका ऑन टू भी होना चाहिए. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन वेन डायग्राम के फॉर्म में आया हुआ है, लाइक दैट, ये एक सेट है, दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन एंड दिस इज द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. और एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी, एंड हियर 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ बी. सो if we have to create the 1 function, so we just know that a will be mapped to one of the element of b, and c will also be mapped to one of a single element, and b will map to remaining element. एंड ये ऑन टू भी होना चाहिए. तो ऑन टू का मतलब 1 का मतलब कि सिंगल एलिमेंट हो, और ऑन टू का मतलब ये सारे इसका पूरा जो इमेज है, वो इसका जो पूरा सेट है कोडोमेन है, वही रेंज बन जाए. मतलब ये सारे एलिमेंट जो है किसी न किसी एलिमेंट की इमेज में हो, या फिर ये कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के हैं उनका प्री इमेज एग्जिस्ट करे. बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 तीन ही एलिमेंट हैं और तीनों एलिमेंट इमेज बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसका एफ का कंप्लीट रेंज बी ही है. तो ये आपका ऑन टू ये कंडीशन हो जाती है. और 1 कंडीशन आप सिंगल एलिमेंट से मैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 भी फॉलो हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन. अच्छा, मैं इसकी बात क्यों कर रहा था, इसको हम यहाँ से समझते हैं कि 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते टाइम हमें इतना पता होता है कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है. अगर हमने एक फंक्शन कंसिडर किया हुआ है एफ फ्रॉम आर टू -1 to 1, बिकॉज हमें इतना पता होता है कि एक जो साइन फंक्शन होता है उसका डोमेन आपका पूरा आर होता है, रियल लाइन, एंड वो जो है -1 से 1 के बीच में बाउंड होता है. तो इसको हमने डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से. तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनता है, लाइक दिस पॉइंट इज -π, दिस पॉइंट इज π, दिस पॉइंट इज -π/2, दिस पॉइंट इज π/2. π/2 पे 1 मिलेगा, -π/2 पे -1 मिलेगा. तो दिस लाइन इज अबाउट -1 एंड दिस इज ऑफ 1. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मैं इस इतने सारे एलिमेंट्स टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात क्यों, बाइजेक्टिव फंक्शन की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर मैं इस सेट को देखता हूँ तो ये फंक्शन आपका जो जितने भी साइन फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपके मिनी वन होते हैं. बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि पाई पर भी ये 0 दे रहा है, माइनस, और ये एलिमेंट आपके रिपीट हो रहे हैं, पाई पे 0 हो रहा है, -π पे 0 हो रहा है, इसकी ब्रांचेज आगे भी जाती हैं और इधर भी जाती हैं. तो इसमें एलिमेंट्स का मोर देन 1 एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है. तो ये आपका मिनी वन फंक्शन है. तो इसको अगर हमें इन्वर्स इसका डिफाइन करना है तो मुझे यहाँ पे इसके लिए इसका 1 और 1 होना ज़रूरी है. तो इसके लिए हम करेंगे क्या. अच्छा, एक बात और होती है यहाँ पे, मुझे याद आ गया, वो ये होता है कि अगर मुझे किसी फंक्शन का 1 चेक करना हो, लाइक दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगर कोई ग्राफ है, लाइक दैट वी हैव अ फंक्शन कुछ इस तरह का है, y = x ले लिया, एक सिंपल एग्जांपल y = x. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि 1 फंक्शन, हम 1 फंक्शन कैसे चेक कर सकते हैं. तो अगर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है तो वो आपका फंक्शन 1 होता है. और इनपुट के लिए मैं x एक्सिस को यूज़ कर रहा हूँ और आउटपुट के लिए y एक्सिस को यूज़ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो मुझे पता है कि इस एलिमेंट करस्पॉन्डिंग जो डोमेन का एलिमेंट है वो यहाँ मिलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो यहाँ मिलेगा, और ये एक सिंगल कटिंग पॉइंट है. तो अगर किसी फंक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, तो वो जो है अगर सिंगल टाइम कट कर रहा है तो इसका मतलब वो आपका फंक्शन 1 है. अब इसी क्राइटेरिया को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो होता ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, π/2 पे देखूँ, तो π/2 से जस्ट आगे ग्राफ आपका टर्न हो रहा है.
ग्राफ आपका टर्न हो रहा है, और यहाँ से हमें एक ऐसी लाइन मिल जाएगी जो इस साइन कर्व को 2 बार कट कर देगी। मीन्स अगर हम π/2 के आगे का ब्रांच लेते हैं तो इसका मतलब है फंक्शन आपका 1 1 नहीं फॉलो कर रहा है, 1 1 की प्रॉपर्टी को वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। सेम ईयर -π/2 पर भी है। अगर मैं -π/2 से पीछे जाता हूँ तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाएगी जो फंक्शन को 2 बार कट कर रहा है। इसका मतलब फिर से ये 1 1 की प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें इसे 1 1 और ऑन टू में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसके डोमेन को शॉर्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल डिस्कशन दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। क्लियर? तो ये चीज़ आपका है। तो यहाँ से अगर मुझे इसको 1 1 ऑन टू करना है तो इसका मतलब मैं π/2 तक जाऊंगा और -π/2 से π/2 तक जाऊंगा। ठीक है, इतनी इस इंटरवल के बीच का जो ब्रांच है वो आपका 1 1 और ऑन टूनेस दोनों को फॉलो करता है। तो अगर मैं इतनी ब्रांच को मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे ये निकल के आता है, ये आपका -π/2 और ये आपका +π/2। -π/2 पे ये मिलेगा, आउटपुट मिलेगा -1, दिस इज -1 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज -1, दिस लाइन ऑफ -1 एंड दिस इज द लाइन ऑफ 1। अब इतने के बीच में जो ये निकल के आ रहा है, इतने के बीच में फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो दिस इज द मेन रीजन। अब इसका बिकॉज हमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करना है, तो अब मैं इसको इन्वर्टिबल कर सकता हूँ बिकॉज अब ये बाइजेक्टिव है। 1 1 ऑन टू होगा तभी फंक्शन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो अब ये इन्वर्टिबल, अगर अदर ब्रांचेज हम लेंगे तो उनमें वो इन्वर्टिबल नहीं है। और ये जो -π/2 से π/2 इंटरवल आया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल, बिकॉज द इंटरवल फॉर विच द साइन फंक्शन इज इन्वर्टिबल इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल। अगर ये फंक्शन आपका f(x) आपका r से -1 से 1 में था और f(x) आपका sin x से डिफाइन था, तो r की डोमेन, r को मैंने पूरा r था तो r को मैंने छोटा कर दिया, -π/2 से π/2 टू -1 to 1। कोडोमेन मैंने चेंज नहीं किया बिकॉज हमें ऑन टू भी मेंटेन करना है, तो कोडोमेन आपका वही रहने वाला जो रेंज है। ठीक है, अब हमें इसका अगर इन्वर्स डिफाइन करना है तो f इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1 और -π/2 से π/2, because we know that if we define the inverse of a function then codomain will be the domain and the domain will be codomain। ओके, तो अब यहाँ पे जो साइन इनवर्स का जो डोमेन आएगा वो आएगा -1 से 1 एंड द रेंज विल बी -π/2 टू π/2। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि जब भी कोई इन्वर्स का फंक्शन आप निकालते हो तो वो जस्ट y = x के अबाउट मिरर इमेज होती है। तो अगर मैं इसी जो आपका f डिफाइन है, जो सॉर्टेड डोमेन है, मीन्स जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है -π/2 से π/2, इसी में अगर साइन की ग्राफ का अगर मैं y = x के अबाउट मिरर इमेज करूं तो मुझे f इन्वर्स का ग्राफ मिलता है। लाइक दैट, अगर हमने यहाँ से ये लिया एक ग्राफ बनाया था -π/2 से π/2, दिस वाज द ग्राफ और दिस इज द लाइन y = x, दिस इज द लाइन y = x। अब इसके अबाउट मुझे मिरर इमेज करना है तो मुझे पता है कि ये एक रिफ्लेक्शन होगा, तो अगर ये ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे कुछ जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा, तो ग्राफ अल्टीमेटली मेरा निकल कैसे आएगा अब डोमेन आपका f इन्वर्स का डोमेन -1 to 1 एंड रेंज इज -π/2 टू π/2, बिकॉज ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, डोमेन आपका कोडोमेन बन जाएगा। एक्चुअली दिस इज द रेंज। तो -1 पे आउटपुट क्या मिलने वाला है, -1 पे -π/2 आएगा, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, जैसे ये लाइक दिस, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ये ऐसे जा रहा है। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये आपका इसका ग्राफ निकल के आता है साइन इनवर्स x का। मीन्स अगर साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स x का अगर मैं डोमेन देखूंगा तो ये x कहाँ से आएगा, x जो इनपुट एलिमेंट है वो आपका आएगा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और साइन इनवर्स का जो रेंज आएगा वो होगा -π/2 से, ये -π/2 वाली लाइन है एंड दिस इज द लाइन ऑफ π/2। रेंज विल बी -π/2 से π/2 एंड द डोमेन विल बी -1 to 1। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द इनपुट एलिमेंट, द होम ऑफ इनपुट एलिमेंट विल बी -1 to 1 इंटरवल। साइन इनवर्स x will be defined if x is from -1 to 1।
and if this is not happening, this is the case of further studies and we will discuss it later. Okay, now if we come to the graph of cos inverse x, we also know about the graph of cos x, so from that perspective we can discuss the graph of cos inverse x. Cos inverse, we know that cos inverse x like this. This is the point 2 pi and this is 3 pi by 2, this is pi and this is pi by 2 and this is 0. Now if we have to if you have to find the domain branch of the cos x where it is invertible, then जहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट है वहाँ से तुरंत मुझे एक लाइन मिल जाएगी जो इसको दो बार कट कर देगी, मतलब ये वन वननेस की प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ तक इसके आगे नहीं जाना है, बिकॉज इसके बाद ये वन नहीं रहा है। ये फंक्शन आपका मेनी वन है, बिकॉज 0 पर भी बना रहा है, 2 पाई पर भी बना रहा है, एंड देयर आर द मेनी एलिमेंट्स आल्सो इन बैक साइड एंड फॉरवर्ड साइड, द एलिमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स विल आल्सो बी 1। सो ये आपका केस ये है कि अगर मैं यहाँ से टर्न हुआ, यहाँ से अगर मैं नीचे पीछे आता हूँ तो एक लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो आपकी दो बार कर्व को कट कर देगी, और उसका मीनिंग ये है कि वो वन वननेस नहीं फॉलो करेगा। और रेंज ऑफ cos x is also 1 to -1 to 1. So the branch which is invertible and the interval for which the cos x is invertible is 0 to pi. F is the function from r to -1 to 1, and if it is defined by fx equal to cos x, and f inverse cos inverse का cos inverse एग्जिस्ट करेगा इफ़ वी रिड्यूस दिस इंटरवल टू 0 to pi -1 to 1, and for f inverse the domain of cos inverse x will be -1 to 1 and range will be 0 से pi। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने चलूँ तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि वही एक mirror image about y equal to x line mirror graph of any function if the mirror is taken about y equal to x, then inverse the graph of inverse function is obtained। एक सिंपल सा क्राइटेरिया, इसको मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा कभी। तो cos का जो ग्राफ है वो इन्वर्टिबल है 0 से पाई में, पाई पे टर्न होता है ये 0 से पाई में। तो दिस इज द ब्रांच, ये पाई बाय 2 का है, एंड दिस इज 1, दिस इज -1। ओके, अब यहाँ से ये y इक्वल टू एक्स है, ये दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन। अब इसका अगर मैं मिरर इमेज लेता हूँ तो y इसके अबाउट, तो ये वाला पार्ट इधर रिफ्लेक्ट होगा और ये वाला पार्ट इधर रिफ्लेक्ट होगा। मीन्स 0 पे अगर 1 आ रहा था तो अब 1 पे 0 आएगा, और पाई पे -1 आ रहा था तो -1 पे क्या आएगा, पाई आएगा। तो इसका डोमेन क्या होने वाला है cos इनवर्स x का? cos इनवर्स का डोमेन होगा -1 to 1 और रेंज होगा 0 से पाई। मीन्स -1 अगर यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, तो 0 पे 1 है तो 1 पे क्या होगा, 0 होगा, और पाई बाय 2 पे 0 है तो 0 पे क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द मिरर इमेज, बिकॉज दिस पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड टू दिस साइड एंड दिस पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड टू दिस साइड। सो दिस विल बी लाइक दिस, बिकॉज इसको यहाँ पाई बाय 2 से पास होना है, और -1 पे क्या मिलेगा, -1 पे पाई पे -1 है तो -1 पे आएगा पाई, तो दिस विल बी लाइक दिस। This is the graph of cos inverse x, and the remaining and the domain of this function is -1 to 1 and the range is 0 to pi. Okay, and the same cos inverse x and sin inverse x, the home of input element will be -1 to 1. Okay, so this was the small discussion of ITF chapter, and there are the 6 trigonometry functions, so we will discuss it later, and the remaining part will be in next video.